सर्वप्रथमे मुक्तिदाता एवं पवित्र ईश्वर को गौरव दिए। प्रभुंकर असीम अनुग्रह एवं दया सकाशु आउ एक नूतन शीर्षक नहीं मु आपण मानक मध्यरे उपस्थित होइअछि। आज आम्भे माने जो विषयटी उपरे आलोचना करिया पई जाउछंती से विषयटीर नाम हेउअछि पवित्रता। पवित्रता कहिले आम्भे माने कौन बुझंती, जहाको इंग्राजी रे द होलीनेस बोली कहा जाए। द होलीनेस, व्हाट इज होलीनेस? पवित्रता कौन? पवित्रता कौन अटे? आम्भे माने आज से विषयटी उपरे पुंखानुपुंख भाव रे आलोचना करिबा। पवित्रता कहिले आम्भे माने कौन बुझंती? प्रत्येक मनुष्य जाने अर्थात विश्वास करे जे ईश्वर पवित्र अटंती। प्रत्येक धर्म पुस्तक रे वर्णना करा जाई अछि जे ईश्वर पवित्र अटंती। अर्थात पवित्रता हेउची ईश्वरंकर एक गुण। पवित्र शास्त्र बाइबल रे प्रथम पीतर प्रथम अध्याय 16 पदरे ईश्वर निजे कहंती, पवित्र हुओ कारण मु पवित्र अटे। बी होली बिकॉज आई एम होली। इन फैक्ट होलीनेस इज ए कैरेक्टर ऑफ गॉड। ईश्वर निजे कहंती पवित्र हुओ कारण मु पवित्र अटे। यही पवित्रता हेउची ईश्वरंकर एक गुण। वर्तमान आम्भे माने यही पवित्रता शब्द रो गभीर अर्थ को बुझिबा पाई चेष्टा करिबा। यही पवित्रता कौन बा पवित्रता कहिले आम्भे माने कौन बुझंती? प्रत्येक मनुष्य को बा प्रत्येक मनुष्य को एक पवित्र जीवन शैली पाई डका जाइछि, जहा ईश्वरंको आज्ञा पालन रे बंचिबा सहित जड़ित। मु धीरे धीरे कहूची, आम माने समस्ते भलर जेमिति बुझी पारंती। प्रत्येक मनुष्य को एक पवित्र जीवन शैली पाई डका जाइछि। एई जीवन शैली कहले आमे माने कौन बुझू? जीवन शैली को इंग्राजी रे लाइफ स्टाइल बोली कहा जाए। এই জীবন শৈলী কহিলে আমি মানে সাধারণত আমি মানে কোন বুঝନ୍ତି? জনে ব্যক্তিଙ୍କର জীবন যাপন শৈলী, the way in which a person lives, the way in which a person lives। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ ଶୈଳୀ अर्थात जड़े व्यक्ति किपरि जीवन यापन करती। जड़े व्यक्तिंकर कहिबार शैली, देखिबार शैली, काम करिबार शैली, चिंता करिबार शैली, तार कथावार्ता, चाली चलन, व्यवहार, आचार व्यवहार, कथावार्ता करिबार शैली एवं निर्णय नेबार शैली, निष्पत्ति नेबार शैली, ये समस्त विषय अन्य लोकंक सहित से केमिति व्यवहार करती, ये समस्त विषयर समावेश को जीवन शैली बोली कहा जाए। तेणु आपण निश्चित भाव में बुझीपारुथिबे, ये समस्तर समावेश को, ये समस्त गुणर समावेश को जीवन शैली बोली कहा जाए। तेणु आमे समस्ते यही जीवन शैली, यही जीवन शैली मध्य को ईश्वर को द्वारा आह्वान करा जाइछंती बा डका जाइछंती। यही जीवन शैली केमिति हेबार अछि आज्ञा? जीवन शैली केमिति हेबार अछि? ए जीवन शैली पवित्र हेबार अछि। जीवन शैली पवित्र
ହେବାର ଅଛି, ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେବାର ଅଛି। এই ଜୀବନ ଶୈଳୀ 24/7 ଡେଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ এই ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା, ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଗୋଟିଏ ମାସ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ। এই ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଆମ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ଜୀବନଶୈଳୀର ଯେଉଁ ଗୁଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରସଗୋଲା ଖାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ରସଗୋଲା କେମିତି ଲାଗେ? ମିଠା। ଏଇ ରସଗୋଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ରସଗୋଲାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ମିଠା ଲାଗିବ। ରାତିରେ ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦିନରେ ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସେ ମିଠା ଲାଗିବ। କାହିଁକି? ତା'ର ଗୁଣ ହେଉଛି ମିଠା। ରସଗୋଲା ହେଉଛି ମିଠା। ତେଣୁ ରସଗୋଲାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ମିଠା ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଏ ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦେଖାଯାଏ ବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥାଏ, ଯେ ସେଇ ରସଗୋଲା ଭଳି ସମସ୍ତ ସମୟ ପାଇଁ ବା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଇଏ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଏ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା, 2 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ମାସେ, ବର୍ଷରେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। 24/7 ଡେଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏକ ଭଳି ଦେଖା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। এই ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ କେମିତି ହେବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏହି ପବିତ୍ର ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛନ୍ତି ବା ଡକାଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବା ତାର ବଞ୍ଚିବାର କାଳ ଭିତରେ, ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ତାଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା, ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପବିତ୍ର ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜୀବନଶୈଳୀ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି, ବାଇବଲ ଅନୁଯାୟୀ ପବିତ୍ରତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପୃଥକ ହେବା, ତାଙ୍କର ନୈତିକ ସିଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଏବଂ ପାପରୁ ପୃଥକ ହେବା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖୁଛି। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଅନୁଯାୟୀ ପବିତ୍ର ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବା ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପୃଥକ ହେବା, ତାଙ୍କର ନୈତିକ ସିଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଏବଂ ପାପରୁ ପୃଥକ ହେବାକୁ ହିଁ ପବିତ୍ରତା ବୁଝାଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଆଜ୍ଞା? ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆଦର କର, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ଚୋରି କର ନାହିଁ, ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନ କର ନାହିଁ, ଲୋଭ କର ନାହିଁ, ପ୍ରତିବାସୀର ଘର, ତା ସମ୍ପତ୍ତି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ପଶୁ, ତା ଧନକୁ ଲୋଭ କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଦିଅ ନାହିଁ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କର ନାହିଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କର ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନି ଚଳିବା
आउ एई ईश्वर आज्ञा को मानि चलिबा हेउची मनुष्यर प्रथम प्रधान कर्तव्य अटे। आउ जेतेबेले जड़े मनुष्य एई ईश्वरंकर आज्ञा को मानि चले से सेई पवित्रता आड़कू गमन करे बा पवित्रता द्वारा ईश्वरंक पवित्रता द्वारा से परिभूषित होइथाय। मात्र साधारण मनुष्य माने एई पवित्रता शब्द को केमिति भावे बुझिथांती आमे देखिबा। आमे समस्ते जानती आम समाज रे साधारण मनुष्य माने एई पवित्रता शब्द को से माने अलग अर्थ रे बुझिथांती। केतेक लोक भावंती स्नान करी निजको से पवित्र करिथांती। स्नान द्वारा से माने निजको पवित्र करंती बोली भाविथांती। केतेक लोक भाविथांती आज्ञा गंगा नदी रे स्नान करिबा द्वारा से माने पवित्र हो जाती। नुहे आज्ञा, जल द्वारा स्नान करी किंबा गंगा नदी रे स्नान करी मनुष्य केबे पवित्र होई पारे नाही। पुणी केतेक लोक भाविथांती वस्त्र पिंधिबा द्वारा से माने पवित्रता को प्राप्त करिथांती। आम समाज रे विभिन्न संप्रदाय रे भिन्न भिन्न वस्त्र पिंधि थांती। जेमिति ख्रिस्टियन संप्रदायर लोक माने तांको पास्टर हुंतु किंबा पालक हुंतु किंबा पुरोहित हुंतु प्रिस्ट जाको कहंती प्रिस्ट हुंतु एमाने धड़ा पोशाक पिंधि थांती। कारण से माने भावी थांती ये जो धड़ा पोशाक हेउची पवित्रतार प्रतीक। तेणु धड़ा पोशाक पिंधिबा द्वारा से माने निजको पवित्र भावरे स्वीकार करिथांती बा ग्रहण करिथांती बा से माने भाविथांती से माने पवित्र होई गले। एवं इस्लाम संप्रदायर लोक माने तांकर जो धर्मगुरु अछंती से धर्मगुरु से माने से ग्रीन सबुज कलर ड्रेस पिंधि थांती, पोशाक पिंधि थांती। से माने भावी थांती सेई वस्त्र द्वारा से माने पवित्र बोली लोक माने भाविबे। आउ आम समाज रे देखि थांती केतेक लोक गेरुआ वस्त्र पिंधि थांती। से फ्रन कलर कमला कलर रंग रो जो वस्त्र गेरुआ वस्त्र भी केतेक लोक पिंधि थांती। इस्लाम संप्रदाय लोक मान स्त्री लोक माने कला रंगर पोशाक पिंधि थांती। एई भली आम समाज रे भिन्न भिन्न संप्रदाय और रंगर वस्त्र पिंधि से माने निजको पवित्र बोली मने करंती। नुहे आज्ञा, एई वस्त्र पिंधिबा द्वारा मनुष्य केबे पवित्र होई पारे नाही। ये वस्त्र सबू आम समाजर भिन्न भिन्न संप्रदायर गुरु माने बा भिन्न भिन्न संप्रदायर लोक माने एई वस्त्र से माने पिंधि विभिन्न प्रकार धर्मर कार्य करिथांती आ भाविथांती से माने पवित्र होई गले। नुहे आज्ञा, एई वस्त्र पिंधिबा द्वारा मनुष्य केबे पवित्र होई पारे ना। पवित्र शास्त्र बाइबल रे ईश्वर एक वस्त्र परिधान करिया पई मनुष्य को कहिसंती। से विषय आमे पाइबा पवित्र शास्त्र बाइबल रो जिशाय महर्षि भविष्यत वक्तांक द्वारा लिखित पुस्तक जिशाय भविष्यत पुस्तक तार 61 अध्याय 10 पदरे एहीपरि लेखा जाइछि। आसंतु सेई अंशटी को आमे माने एठारे पाठ करिबा। एठारे एहीपरि लेखा जाइछि, मु सदा प्रभुंक ठारे अतिशय आनंद करिबी, कारण बर जेपरि भूषण रे आपणा को भूषित करे, से परि ईश्वर परित्राण रूप वस्त्र रे मोते वस्त्रान्वित करिअछंती ओ धर्म रूप राजवस्त्र रे मोते आच्छादित करिअछंती। देखंतु
से क्यों वस्त्र कथा ठारे कहउछंती वर्णना करिसंती से ईश्वरंक परित्राण रूप वस्त्र रे मोते वस्त्रान्वित करिअछंती। ईश्वरंकर परित्राण रूप वस्त्र, मुक्ति रूपक वस्त्र, उद्धार रूपक वस्त्र, पापरु क्षमा पाइथिबार वस्त्र, सेई वस्त्र एठारे पिंधिबा कथा ईश्वर कहउछंती। से पुणी कौन कहउछंती धर्म रूप राज वस्त्र रे मते आच्छादित करिअछंती। धर्म रूप राज वस्त्र रे से वस्त्र क्योंथरे निर्मित आज्ञा? से वस्त्र साधारण जो सूतारे तैयारी हेनी आज्ञा, ता धर्म रूप राजवस्त्र, धर्म रे निर्मित है से वस्त्र से मुक्ति द्वारा निर्माण करा जाइछि, मोक्ष द्वारा परित्राण रूप वस्त्र से परित्राण रूपक वस्त्र, से धर्म रूपक वस्त्र, राजवस्त्र से साधारण सूतारे तैयारी हेतिबा वस्त्र नुहे आज्ञा। से सूतारे तैयारी हेतिबा कपड़ा नुहे आज्ञा। से कपड़ा केबे नष्ट हो जाए नहीं आज्ञा। आज्ञा आम संप्रदायर जो धर्मगुरु माने जो भिन्न भिन्न वस्त्र कथा कहती बा जो वस्त्र पिंधती से यही धला कला गेरुआ वस्त्र ये सूतारे निर्मित वस्त्र ये नष्ट हो आज्ञा। आमे जो आमर ये शरीर उपरे जो भिन्न भिन्न रंगर पोशाक पिंधि थांती, जो धार्मिक वस्त्र पिंधि थांती आउ से वस्त्र पिंधिकी आमे निजको पवित्र बोली मन करती आज्ञा। से वस्त्र एइटी रही जीवो आज्ञा। से वस्त्र यही माटीर शरीर, ये माटीर शरीर ये माटी मिसिबा सहित आम यही शरीर उपर जो ढांकी वस्त्रटी ये माटी रे रही जीव आज्ञा। ये वस्त्र को उई खाई जीव आज्ञा। ये वस्त्र नष्ट हो जीव आज्ञा। ये वस्त्र पोक खाई जीव आज्ञा। आम शरीर को पोक खाई जीव परा। पुणी ये वस्त्र कथा छाड़, ये वस्त्र तो एइटी रही जीव। तेणु तेबे ये वस्त्र ये धला कला गेरुआ वस्त्र पिंधिबार कौन आवश्यक अच्छी आज्ञा? ये वस्त्र पिंधिकी आमे निजको पवित्र बोली भावी थांती, निजको धार्मिक बोली भावी थांती। किंतु पवित्र शास्त्र बाइबल रे पवित्र ईश्वर से कहती से वस्त्र धर्म रूपक राजवस्त्र, से वस्त्र परित्राण रूप वस्त्र, से मुक्ति रूपक वस्त्र रे आमे समस्ते आच्छादित हेबार आवश्यक अच्छी आज्ञा। ये जगत रे ये समाज रे ये जो सूतरे निर्मित धला कला गेरुआ वस्त्र पिंधि आमे परित्राण मुक्ति पाइबा नहीं आज्ञा, किंबा सही पवित्रता को प्राप्त करि पारिबा ता नुहे आज्ञा। आपण निजे चिंता करी देखंतु यही वस्त्र विषय पवित्र शास्त्र बाइबल रे अन्य एक जगार यही पर लिखा जाइछि। आईब पुस्तक तार 29 अध्याय 14 पदरे सेटारे एमती लिखा जाइछि, मु धर्म परिधान कली। कौन परिधान कली? परिधान कली अर्थ मु पिंधिली। परिधान कली कौन पिंधिली आज्ञा? मु धर्म रूपक वस्त्र को पिंधिली। मोर प्रिय भाई भौणी माने, मोर प्रिय श्रोता मंडली, आपण ये जो धला कला गेरुआ वस्त्र पिंधिबार आवश्यक नहीं। आपण से धर्म रूपक वस्त्र को परिधान करंतु। मु धर्म परिधान कली, ओ ताहा मोते परिधान कला। मु धर्म को परिधान कले धर्म मते परिधान करिवो। धर्म को मु पालन कले धर्म मते पालन करिवो आज्ञा। तेणु पवित्र शास्त्र बाइबल रे सेई परित्राण रूपक वस्त्र, से धर्म रूपक राजवस्त्र विषय वर्णना करा जाइछि। जेई वस्त्र को सही वस्त्र को प्रत्येक मनुष्य को पिंधिबा पाई ईश्वर आह्वान करिसंती।
तेणु मोर प्रिय भाई भौणी माने यही वस्त्र पिंधिबा द्वारा समाज रे भिन्न भिन्न संप्रदाय रे जो वस्त्र प्रचलित से वस्त्र पिंधिबा द्वारा आमे पवित्रता को पाई पारिबा नाही। पुणी आम समाज रे केतेक लोक भाबंती चिता चैतन माला चंदन कंठरे हाथरे कपाଳରେ पिंधि से निजको पवित्र बोली भावी थांती। आपण देखिथिबे आम समाज रे अनेक लोक चिता मथारे कपाଳରେ चंदन लगै थांती, हाथरे चंदन लगाई थांती, कंठरे चंदन लगाई थांती, छातीरे लगाई थांती। यार अर्थ कौन आज्ञा? कंठरे चंदन लगाइबार अर्थ होउची ए जो चंदन शीतलतार प्रतीक आज्ञा, कोमलता प्रदान करिथाए। कंठरे चंदन लगाइबा द्वारा यार अर्थ होउची आम कंठरू जो वाक्य निर्गत हेबो बा आमे माने जो कथा कहवा ता चंदन भली अन्य को शीतल प्रदान करवा उचित। आमर भाषा आमर जो शब्द आमर जो कथा या कोमलता प्रदान करवा उचित। जदि आमे चंदन कंठरे लगाई अन्य को दुख देवा भली कथा कही थांती, कष्ट दे थांती, ताले से कंठरे चंदन लगेबार कौन तात्पर्य आज्ञा? से भली आमे कपाଳରେ चंदन लगवा द्वारा कौन तार अर्थ ना कपाଳରେ चंदन लगाती आमे जो चिंता करती मस्तिष्क द्वारा आम ब्रेन द्वारा आम मस्तिष्क द्वारा जो चिंता प्रकट करती ता अन्य को खुशी करवा उचित, अन्य को दुख पहुँचाइबा उचित नुहे बा आमर चिंता अन्य को खुशी देवा उचित। देखंतु आमे जदि कपाଳରେ चंदन लगाई अन्य को दुख देवा, अन्य को मारिबा, अन्य को कष्ट देवा, अन्य को लुंठन करवा चिंता आमे चिंता करती मने मने कल्पना करती ताले से कपाଳରେ चंदन लगाइबा व्यर्थ आज्ञा। से भली आम हाथ रे जदि चंदन लगाई आम हाथ चंदन लगाइबार अर्थ कि आम हस्त द्वारा अन्य को आमे खुशी देवा, अन्य को आमे आशीर्वाद करिबा, अन्य को आमे शांति देवा। किंतु हाथ रे चंदन लगाई सेही जो हस्त रे चंदन लगैछंती सेही हस्त रे जदि आमे तलवार धरी मारणास्त्र धरी अन्य को मारिबा ताहले हाथ रे चंदन लगवार कौन माने आज्ञा? आपण नीचे देखंतु तो केवल चिता चैतन माला पिंधि देले आमे पवित्रता को हासिल बा पवित्रता को प्राप्त करि पारिबा नाही। आज्ञा मु तो देखिछि केतेक ब्राह्मण लोक जेतेबेले से मंत्र उच्चारण करथिबे सेतेबेले मु देखिछि तांका पाटी रे पूरा पान खाई पूरा लाल एमिति मने हुए कि वर्तमान से को मनुष्य को कंचा चोबेगी आसीचंती, ता रक्त ता पाटी रे लागिछि। से पान खाई कि ता पाटी जाक एते लाल एते माने लाल रे पूरा परिपूर्ण लाल एते देखा जाउछि कि सी लाल पाटी रे दांत रे से मंत्र उच्चारण करी से प्रभु को पूजा करुछि बा ईश्वरकर पूजा करुछंती। देखंतु आज्ञा तेणु एई चिता चैतन माला चंदन लगाई देले आमे पवित्र होई गेले, आमे पवित्र व्यक्ति होई गेले ता कहबा भूल आज्ञा। आज्ञा केतेक लोक भावी थांती खाद्य खाइबा द्वारा मध्य से माने पवित्रता को प्राप्त करिथांती। खाद्य खाइबा द्वारा अर्थ निर्दिष्ट बार निर्दिष्ट समय निर्दिष्ट मास वर्ष रे केतेक लोक आमिष खाती नहीं आज्ञा। से माने आमिष न खाइबा द्वारा मने मने भावी थांती से माने पवित्र। आज्ञा पवित्र शास्त्र बाइबल रे 15 माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 15 अध्याय 18 पदरे यही पर लिखा जाइछि। मनीष पाटी द्वारा जो खाद्य से खाए से खाद्य ता पेट भीतर को जाए, से खाद्य द्वारा से अपवित्र हुए नहीं आज्ञा। देखंतु
ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଯାହା ବି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆମ ପାଟି ଦ୍ୱାରା ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ତା ପେଟକୁ ଯାଏ ଆଉ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ସଣ୍ଡାସରେ ବାହାରିଯାଏ ପଦାକୁ ବାହାରିଯାଏ। ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବା ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅପବିତ୍ର କରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମାତ୍ର ମଣିଷ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟ ତା ପାଟି ଦ୍ୱାରା ତା ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ତା ଆଖି ଦ୍ୱାରା ତା ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଭିତରୁ ବାହାରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅପବିତ୍ର କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସେ ଯାହା ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରୁ ଯାହା ବାହାରକୁ ଆସେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ଯେଭଳି ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆମେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ପରର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଅସୁବିଧା ପକାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ହତ୍ୟା ନରହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି ଚୋରି ପାଇଁ କଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି ଲମ୍ପଟତା ବ୍ୟଭିଚାର ବେଶ୍ୟାଗମନ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଏସବୁ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି କେଉଁଠି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ। ଏସବୁ ବିଷ କେଉଁଠି ଥାଏ ମଣିଷର ଭିତରେ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆଉ ସେ ବିଷ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସେ ତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଚୋରି କରିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଚୋରି କରିବାର ସେଇ ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଚିନ୍ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୋରି କରେ ସେଇ ଚୋରି କରିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ କ'ଣ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଖରୁ ଯାହା ସବୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାହା ହୃଦୟରୁ ବାହାରେ ଓ ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୁଖରୁ ଯାହା ସବୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତା ହୃଦୟରୁ ବାହାରେ ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। ତେଣୁ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଖରାପ ଚିନ୍ତା ହତ୍ୟା ଚୋରି ଲମ୍ପଟତା ବ୍ୟଭିଚାର ବେଶ୍ୟାଗମନ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାର ଲୋଭ ଏସବୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥାଏ ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ତାହା ଦ୍ୱାରା ବା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର କିମ୍ବା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ ଏହା କହିବା ଅନୁଚିତ ବା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଆଉ କେତେକ ଲୋକ କହନ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର ହେବା ଏହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିକି ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବା ତା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବା ତା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ ମାଳା ଆମେ ପିନ୍ଧି ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବା ଏହା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଦ୍ୱାରା ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଥାଳି ଆମର ଯେଉଁ କଂସା ହେଉ କିମ୍ବା ଥାଳି ହେଉ ବା ତାଟିଆ ହେଉ ଯେଉଁ ଆମର ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଧୁଅନ୍ତି ଥାଳିକୁ ପରିଷ୍କାର କଲା ବେଳେ ଧୋଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ମାଞ୍ଜନ୍ତି ନା ଆମେ ସଫା କରନ୍ତି ନା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥାଳିକୁ ଧୁଅନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବାହାରେ ସାବୁନ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ମାଞ୍ଜି ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭିତରେ ଥାଳିର ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଆମେ ଧୌତ କରିଥାନ୍ତି।
ना गोटे खाली भितर आम धोई था बाहर धोई न था कि आज्ञा धोई था। ठीक से भली पवित्रता जो जिनस पवित्रता मनुष्यर भितर एवं बाहर धौत करिवार आवश्यक अच्छी। मनीष स्नान द्वारा जितेबाला तार शरीर बाह्य शरीर को धौत कर पवित्र करिଥାଏ, ठीक से ही भली मनुष्यर अंतर ता मन को धोइबा आवश्यक अच्छी। स्नान करी से शरीरर मलिनता को धौत करवा कथा। आमे शरीर जो स्नान करते आमे स्नान करते शरीर को धुअंती, ये जो शरीरर मलिनता स्नान द्वारा धौत होता है, किंतु हृदयर मलिनता मनर मलिनता को धोइबार आवश्यक अच्छी। जेभली आमे थालीर भितर एवं बाहर दुईटा को परिष्कार करिथांती, सेही भली मनुष्यर बाहर अर्थात शरीर को धौत करने सहित ता हृदयर ता मनर धौत परिष्कार करिवार आवश्यक अच्छी आज्ञा। आम शरीर को सीना यही जगतर पानी द्वारा धौत करिथांती, किंतु आम मन को आम हृदय को कौ पानी आम धोई थांती आज्ञा। तेणु आम शरीर सहित मन एवं हृदयर भी पवित्रता हेबार आवश्यक अच्छी, शौच हेबार आवश्यक अच्छी बा शुद्धिकरण करिवार आवश्यक अच्छी। शौच शुद्धिकरण अर्थ शौच शौच परिष्कार परिच्छन्न सफा करिवार आवश्यक अच्छी आज्ञा। आज्ञा मु गोटे मात्र गोटे उदाहरण कहूँ चाहूँगी। जदि जड़े व्यक्ति अति प्रभातरू उठी गाधोई पाधोई स्नान करी से कपड़ा भल कपड़ा परिष्कार परिच्छन्न कपड़ा पिंधि से मंदिर को हो किंबा मस्जिद की हो किंबा गुरुद्वारा को हो किंबा चर्च को से जाती जो ठीक जहाँ को विश्वास करुवे से सेठिक जीवे आउ से मंदिर रे जाई ईश्वर को निकट रे धूप दीप नैवेद्य झुणा देई पुष्प द्वारा से आराधना करती पूजा पाठ करी से मंदिर रु फेरती। आउ पूजा पाठ कला परे पुण से ही व्यक्ति से ऑफिस को जाती। आउ ऑफिस रे जदि से जाई क्यों व्यक्ति को ठारू लांच नियंती क्यों व्यक्ति को ठारू लांच से नियंती, तेबे कौन आमे कहि परिबा से व्यक्ति जनक पवित्र? आमे कौन से कहि ताल से मंदिर को जीवार चर्च को जीवार गुरुद्वार को जीवार मस्जिद जीवार कौन लाभ है आज्ञा? आमे अध घंटा घंटे से पूजा पाठ करी मंदिर रु फेरिले प्रार्थना करी चर्च रु फेरिले ऑफिस रे जाई अन्य सहित झगड़ा कले लड़ाई कले अन्य ठारू आमे लांच नेले ताहले आम पूजा करिवार कौन अर्थ आज्ञा? से व्यक्ति जदि चोरी करे लांच निए निशा सेवन करे सिगारेट पिए पान खाए मद पिए ताले मंदिर जीवार कौन आवश्यक आज्ञा? से व्यक्ति को आम पवित्र कहि परिबा कि आज्ञा? से व्यक्ति जो व्यक्ति पूजा करिबा परे ठाकुर को पूजा करिबा परे से अन्यठू लांच नौछि। आपण लांच कथा मु कौन कहबी आज्ञा? करप्शन ये जो लांच नेबार जो ये जो विधि लांच जो नौचंती लोक ये लांच नबा आजिकाली ये आकाश को छुईलानी है। करप्शन करप्शन लांच लांच आज एते बढ़ी गलानी आज्ञा बंचिबा साधारण मनुष्य मान पक्षे बंचिबार भी बहुत कठिन हो गलानी कष्ट हैलानी आज्ञा। आपण ये लांच कथा कौन मु कहबी आज्ञा? आपण आपण पिलांकर जदि जन्म प्रमाण पत्र बनैया पाई चाहूचंती जदि आपण आधार कार्ड राशन कार्ड आपण परिवार राशन कार्ड करिया पाई चाहूचंती सबु काम पाई आज लांच देवा को पड़ुची आज्ञा। आपण समस्त जानिथिबे मु कौन कहबी आज्ञा से कथा। आपण ब्लॉक जाउचंती
ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ को जाउचंती, ଆପଣ प्रत्येक स्थान को जाउचंती, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଘୁଷ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଏ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଲାଣି। ଇଏ ଡାଲି ଚାଉଳ ପନିପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏ ଲାଞ୍ଚର ବି ଆଜି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଲାଞ୍ଚ ସବୁଆଡ଼େ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ କର୍ମଚାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଲାଞ୍ଚ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ କ'ଣ କହେ? ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ, କିଏ ବା ତୁମ୍ଭେ ଲାଞ୍ଚ ନେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଲାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରେ ଓ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା କରେ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରେ ଆଜ୍ଞା। ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମ୍ଭେ ଲାଞ୍ଚ ନେବ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ। ବିଚାର କରିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଚାରପତି ମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିଥିବେ ଆମ ସମାଜରେ ବିଚାର କିଣା ବିକା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଧନୀ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନ୍ୟାୟକୁ ଖରିଦି କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ନ୍ୟାୟ ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ, ଆମ ଦେଶରେ କିଣା ବିକା ଚାଲିଛି, ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି, ବେପାର ଚାଲିଛି, ବେପାର ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କହୁଛି, ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାୟରେ ବିଚାର କରିବ। ଆଜି ନ୍ୟାୟ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ଆମ ବିଚାରାଳୟରେ ଯେଉଁଠି ବିଚାର କରାଯାଉଛି, ବିଚାରପତି ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା? ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବ, ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ସକାଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଘରକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ଘରକୁ ଯାଇକି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଜଣେ ବିଚାରପତି ହେଇଥିବେ, ସେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଜ୍ଞା? ସେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ନ୍ୟାୟରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛି, ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରୁଛି, ସେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା? ସେ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା? ନାହିଁ। ସେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ମାନିବା କି ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ପବିତ୍ରତା, ଏ ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ଆମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହେବା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ହେବା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପବିତ୍ର ହେବା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। ସତରେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଟିକେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହି ପବିତ୍ର ହେବା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା, ସେହି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିବେ, ସେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ, ସେ ଆମକୁ ଚଳେଇବେ, ଚାଳନା କରିବେ। ଆମେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ତାଙ୍କ ଦୟା, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା,
तांको विश्वास करिबा जेतेबेले यीशु आम जीवन रे आसीबे से आमको तांको सत्य पथरे कढेई नेबे तांको उपस्थिति आम जीवन रे रहिबो तांको उपस्थिति रे आम माने रहिले से आम मानको पवित्र करिवे तांको वाक्य शुणिले तांको कथा मानिले तांको आज्ञा पालन कले तांको उपस्थिति रे तांको सानिध्य रे तांको आज्ञा पालन करिबा द्वारा आमे धीरे 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 पवित्र होई चलिबा। आज्ञा आमे निजे पवित्र होई परिबा नहीं। आमे स्नान करिबा द्वारा नदी रे स्नान करिबा द्वारा गंगा नदी रे स्नान करिबा द्वारा बा स्नान करुवा समय मंत्र उच्चारण करिबा द्वारा गाधोई बाधोई पवित्र हेले भल कपड़ा पिंधिकी आमे निजको पवित्र करि परिबा नहीं। आज्ञा कौनसी विशेष वस्त्र परिधान करिबा द्वारा आमे निजे पवित्रता को प्राप्त करि परिबा नहीं। आज्ञा आमे ए समाजर आम धार्मिक गुरु मानक द्वारा दिया जाइथिबा जो धला कला सबुज रंग हलदी रंग गेरुआ वस्त्र पिंधि आमे पवित्र होई पारिबा नहीं। आज्ञा कौनसी विशेष खाद्य खाइबा द्वारा बा न खाइबा द्वारा आमे अपवित्र होई जिबा ताहा नुहे। आज्ञा चिता चैतन चंदन माला पिंधि आमे निजको पवित्र करि पारिबा नुहे। आज्ञा करि पारिबा नहीं। आज्ञा तीर्थ स्थान भ्रमण करी आमे पवित्र होई जिबा ता नुहे। आज्ञा आमे टंका पैसा द्वारा आम संपत्ति द्वारा आमे पवित्रता को किणी पारिबा नहीं। आज्ञा मंत्र उच्चारण करी आमे पवित्रता को प्राप्त करि पारिबा नहीं। आज्ञा उपवास द्वारा दान दक्षिणा देई मंत्र उच्चारण करी आमे पवित्रता को किणी पारिबा नहीं। आज्ञा बा पवित्रता को प्राप्त करि पारिबा या यथार्थ नुहे। आज्ञा 12 मास वर्ष पर्व पर्वाणी विभिन्न कार्य अनुष्ठान करी दान दक्षिणा लोक मान को खाइबा को देई आमे पवित्रता को किणी पारिबा नहीं। आज्ञा आमे निजे भी चाहिए आमे पवित्रता को आमे प्राप्त करि पारिबा नहीं। आमे निजे पवित्र हेबा आम हाथ रे नहीं। आज्ञा आमे निजे पवित्र होई पारिबा नहीं। या ईश्वर को कार्य से आमको पवित्र करि पारिबे। तेणु मोर प्रिय भाई भौणी माने ये पवित्रता हेउची ईश्वर एक गुण आ से गुण मध्य को प्रत्येक मनुष्य मानकू ईश्वर आह्वान करिसंती। एई पवित्रता वस्त्र आम मानकू से परिधान करिवा पाई चाहती। आमे से वस्त्र को परिधान करवा उचित। बिना पवित्रता वस्त्र न पिंधिले बा पवित्रता वस्त्र को आमे परिधान न कले तांको सहित आमे साक्षात करि पारिबा नाही। तेणु यही पवित्र वस्त्र को पिंधिबा पाई हेले पवित्रतार जीवन काटिबा पाई हेले सेही पवित्र ईश्वर आम मध्य को आसबार अच्छी तांको द्वारा आम जीवन कटेबार अच्छी आ से जो आम जीवन को आसबे आम जीवन धीरे धीरे तांकरी आड़ को चलिबो। तांकरी आज्ञा मानिले तांको आदेश मानिले आम धीरे धीरे सेही पवित्रता आड़ को बढ़ी चलिबा आउ अर्थात पवित्रता को आम ग्रहण करि परिबा। तेणु मोर प्रिय भाई भौणी माने यही पवित्रतार आमे बढ़िबा पाई से पवित्र ईश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आम हृदय को आह्वान करिबार अछि। तेणु से पवित्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम हृदय को आसिले आम समस्त को से पवित्रता आड़कू से पवित्रतार रास्ता आड़कू कढ़ई नेबे। प्रभु ए वाक्य द्वारा समस्त श्रोता भाई भौणी मानकू आशीर्वाद करंतु।